So in today's session, we will start with software testing. So everybody knows what software testing means, right? सबको software testing क्या होता है पता है. What do you mean by software testing? तो simple language में अगर हमको explain करनी है, if we want to explain it in a simple language, testing a software, ठीक है, testing a software is nothing but software testing. Testing a software is nothing but software testing. Barabar? Now the question we are going to get here is, what is a software? Now the question we will be getting here is, what is software? So what do you mean by a software? Software is simply, it is set of instructions. Okay, software, it is simply a set of instructions, or you can call it as set of programs. Software is simply a set of instructions. So instructions मतलब क्या होता है जी? Instruction is nothing but a logic, right? हमको जो चीज चाहिए होता है, whatever I think I want from my system, मेरा सिस्टम से मेरे को जो चीज चाहिए होता है वो इंस्ट्रक्शंस रूप में देते हैं हम लोग. These instructions we simply call them as logics. Right? यही लॉजिक को लेके प्रोग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं डेवलपर्स. They will be creating the syntaxes, they will be creating the programs by using some syntaxes, and these programs they collectively call as software. Software is simply a set of programs. Again, what is a program? Program is nothing but set of instructions. So according to our understanding, we can simply call a software as set of instructions. Software मतलब कुछ नहीं है, कुछ set of instructions होता है. So why do we use a software, or what is the use of a software? What is the use of a software? Again, software किस लिए यूज करते हैं हम लोग? Software, it is done to perform some task. कुछ तो टास्क परफॉर्म करना है. I want to perform some task. So for example, let us consider I want to perform some arithmetic calculations. I want to do some calculations. मुझे कुछ calculations करनी है. Now I want to do one calculation like this: 143 into 897. What will be the answer here? So there will be some answer. So instead of doing it manually, what we do, we can take the help of a calculator. That will take the help of a calculator. So हमारा लैपटॉप्स के अंदर भी कैलकुलेटर्स होंगे ना, सिस्टम्स के अंदर भी कैलकुलेटर्स होते हैं. So calculator is one type of a software which is used to perform some arithmetic operation. Now if I want, for example, I want to watch some movie. मेरा सिस्टम में मुझे कुछ मूवी देखना है. So मूवी देखने के लिए we have different media players. That हमको अलग अलग मीडिया प्लेयर्स हैं. VLC मीडिया प्लेयर है, बाद में VLC मीडिया प्लेयर के बाद 1 2 3 प्लेयर है, विंडोज मीडिया प्लेयर है. ऐसे हमको अलग अलग प्लेयर्स हैं. So media players help us to listen to music or watch the movies. गाना सुनने के लिए यूज करेंगे या मूवी देखने के लिए यूज करेंगे. नहीं, अगर मेरे को कुछ फाइल क्रिएट करना है, आई वांट टू राइट स्टोर सम डेटा. ठीक है, मुझे कुछ डेटा स्टोर करना है. डेटा स्टोर करने के लिए यू विल बी हैविंग फाइल्स में आपको वापस डॉक फाइल्स होता है, पीपीटी फाइल्स होंगे, एक्सेल फाइल्स होंगे.
सो डॉक फाइल्स हो, एक्सेल फाइल्स हो, ये सब के सब एमएस ऑफिस में आ रहता है ना, एवरीथिंग विल बी देयर इन एमएस ऑफिस. सो अगेन एमएस ऑफिस इट इज अ सॉफ्टवेयर. ठीक है, चलो अगर ये सब हमको नहीं पता, आई डोंट नो व्हाट अ कैलकुलेटर इज, आई डोंट नो व्हाट एमएस ऑफिस इज, आई डोंट नो व्हाट एंटीवायरस इज, बट अगर हमारा पास लैपटॉप है, अगर लैपटॉप नहीं है, इफ यू आर हैविंग मोबाइल, मान लो हमारे पास मोबाइल है, सो मोबाइल अगर मेरे को यूज करना है या लैपटॉप मेरे को यूज करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू हैव इन आवर सिस्टम इज ओएस. ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं हम लोग. हमारा लैपटॉप पे काम करना है तो ओएस चाहिए. देयर आर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स. वी विल बी वर्किंग इन विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देयर विल बी डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स. ईच एंड एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम इज नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर. सो अब ओएस यूज करके हम 100 डिफरेंट थिंग्स कर सकते हैं. सो कोई भी सॉफ्टवेयर अगर हमको रन करना है, एग्जीक्यूट करनी है, सबसे पहले सिस्टम में ओएस होना चाहिए. दैट माइट बी डॉस, दैट माइट बी विंडोज, दैट माइट बी लिनक्स और यूनिक्स. कुछ तो ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए. सो क्या होता है, सॉफ्टवेयर हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमको जो चीज चाहिए होता है उसके हिसाब से देयर विल बी डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर दैट विल बी यूजिंग. Sometimes we'll be using calculator, sometimes we'll be using OS, sometimes we'll be using some other things. So software is nothing but software. It is an application which is used to perform some task. Okay, in general language, what is a software? Software is nothing but a computer application, which is used to perform some specific task. ठीक है. सो दिस सेंटेंस में वेरी, कभी कभी एक सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक टास्क के लिए होगा, कभी कभी एक सॉफ्टवेयर हमको 10 अलग अलग टास्क परफॉर्म करने के लिए होगा, कभी कभी एक सॉफ्टवेयर हमको 100 डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए होता है. फॉर एग्जांपल, अभी हमने ब्राउजर लिया है. ब्राउजर इज ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर. क्रोम ब्राउजर है, फायरफॉक्स ब्राउजर है, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सॉफ्टवेयर. बट ब्राउजर यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्राउजर यूज करके मैं इंटरनेट सर्फ कर सकता हूँ. आई कैन सिंपली ब्राउज डिफरेंट डिफरेंट साइट्स, आई कैन एक्सेस डिफरेंट डिफरेंट वेब एप्लीकेशंस, राइट. सो मेरे पास मेरा सिस्टम पे पीडीएफ रीडर है. आई एम हैविंग ए पीडीएफ रीडर इन माय सिस्टम. सो पीडीएफ रीडर से मैं पीडीएफ रिलेटेड इन्फॉर्म, जो भी पीडीएफ फाइल्स होंगे वो सारे के सारे पीडीएफ फाइल्स हम लोग ओपन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं. इफ यू हैव, इफ यू वांट यू कैन एडिट दोस फाइल्स, उसको एडिट भी कर सकते हो आप. ऐसे हर एक सॉफ्टवेयर के लिए अलग अलग स्पेसिफिकेशंस होगा, अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है. तो सवाल यह कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट. रिक्वायरमेंट क्या होता है? रिक्वायरमेंट इट इज नथिंग बट नीड. इन जनरल और सिंपल लैंग्वेज वी कॉल रिक्वायरमेंट एज नीड. इसी रिक्वायरमेंट को आईटी में, मतलब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, अलग अलग टर्मिनोलॉजी से यूज करते हैं हम लोग, अलग अलग टर्मिनोलॉजी से बुलाएंगे. रिक्वायरमेंट इज नथिंग बट नीड. मेरे को जो चीज चाहिए वो चीज हमको परफॉर्म करने के लिए, वो टास्क हमको परफॉर्म करने के लिए, आई रिक्वायर सम एप्लीकेशन विच विल मेक माई टास्क इजी. ठीक है, मेरा काम आसान करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज करते हैं हम लोग. सो वंस वी अंडरस्टैंड व्हाट अ सॉफ्टवेयर इज, अभी हमको सॉफ्टवेयर मतलब थोड़ा सा आइडिया आ गया. देयर आर डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर, देयर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर. सम सॉफ्टवेयर आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग सम स्पेसिफिक टास्क. ठीक है, some softwares are used for performing some specific task, whereas some other softwares they are used for performing multiple tasks. कुछ सॉफ्टवेयर आपको मल्टीटास्किंग के लिए यूज होता है, कुछ सॉफ्टवेयर आपको स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज होता है. So once we understand what the software is, next one is testing. Next one क्या होता है? टेस्टिंग. So testing is nothing but
वेरिफिकेशन। ठीक है, टेस्टिंग क्या होता है? टेस्टिंग चेक करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। क्या चेक करते हो? ठीक है, चेकिंग किस लिए यूज करते हैं हम लोग? सॉरी सॉरी, टेस्टिंग किस लिए यूज करेंगे? या टेस्टिंग मतलब क्या होता है? टेस्टिंग इज सिंपली कंपेयरिंग। किसके साथ कंपेयर करते हैं और क्या कंपेयर करते हैं हम लोग? सो टेस्टिंग मतलब कंपेयर करना होता है, वेरीफाई करना होता है। क्या वेरीफाई करते हैं? व्हाट डू वी एग्जैक्टली वेरीफाई? सो मेरे को जो चीज चाहिए, वॉट एवर आई वॉन्ट एंड वॉट एवर आई गॉट, मुझे जो चाहिए और मुझे जो मिला, वो दोनों की दोनों सेम है कि नहीं है। ठीक है, ये चेक करने के लिए हम लोग टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग इज नथिंग बट कंपैरिजन। वी सिंपली वेरीफाई और वी सिंपली कंपेयर व्हाट आई वांट विथ व्हाट आई गॉट। ठीक है, मुझे जो चाहिए और मुझे जो मिला है, वो दोनों सेम टू सेम है कि नहीं है, ये चेक करते हैं हम लोग। सो टेस्टिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ एप्लीकेशन के ऊपर करते हैं। टेस्टिंग इज नॉट डन ओनली ऑन द एप्लीकेशंस और ओनली ऑन द सॉफ्टवेयर्स। टेस्टिंग इज डन ऑन डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस। कोई भी आइटम ले लो आप, कोई भी हार्डवेयर मटेरियल ले लो, उसके ऊपर भी टेस्टिंग होता है। ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर ले लो, टेस्टिंग होता है। कोई भी नॉन सॉफ्टवेयर आइटम ले लो, इसके ऊपर भी टेस्टिंग होता है। वी माइट बी यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट नेम्स। कहीं कहीं हम लोग क्वालिटी टेस्ट बोलते हैं, कहीं कहीं हम लोग क्वालिटी चेक्स बोलते हैं, कहीं कहीं जगह पे हम लोग क्वालिटी एश्योरेंस बोलते हैं। वी कॉल देम एज क्वालिटी एश्योरेंसेस। समटाइम्स वी कॉल देम एज क्वालिटी कंट्रोल, समटाइम्स वी कॉल देम एज क्वालिटी चेक्स। ठीक है, सो अलग अलग नाम होगा। whatever might be the name, testing is simply comparing what I want with what I got. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे एक कैलकुलेटर का एग्जाम्पल लेते हैं। आई वॉन्ट टू परफॉर्म सम कैलकुलेशन। सो वो कैलकुलेशन के लिए हमने क्या किया, एक कैलकुलेटर को डिजाइन करवाया। ना तो मैं जो कैलकुलेटर है, वो कैलकुलेटर हमने ले ली। अभी ये कैलकुलेटर में हम लोग क्या करेंगे, विल जस्ट गिव द इक्वेशन 7 into 9, 7 into 9। द रिजल्ट आई गॉट इज 79। ठीक है, 7 to 9 इज इक्वल टू 79। सो दिस इज द रिजल्ट आई गॉट। अभी मेरा इक्वेशन करेक्ट है कि गलत है? सो वॉट एवर इक्वेशन आई गॉट, इज इट करेक्ट और रॉन्ग? 7 into 9 इज इक्वल टू 79 करेक्ट है कि गलत है? सो 7 into 9 79, इट इज रॉन्ग। डायरेक्टली बोल सकते हैं हम लोग गलत है बोल के। सो हाउ कैन यू से दैट इट इज रॉन्ग? How can you say that it is wrong? Because we already know that 7 into 9 is equal to 63. 7 multiplied by 9, the result we are going to get will be 63. So what we are expecting from the application, मुझे मेरा application से expectation क्या है? I want 63. So whatever we are expecting here, हमको जो चीज पहले से पता है, मुझे मेरा application से जो चीज पता है, that we call it as expected results. Some people call it as expected values, some people they call it as expected results. राइट, सो मेरे को मेरा सिस्टम से जो चीज चाहिए वो एक्सपेक्टेशन होता है, एंड द रिजल्ट आई गॉट फ्रॉम द एप्लीकेशन। सो मेरे को जो आउटपुट मिला, दिस आउटपुट वी कॉल इट एज एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल रिजल्ट। दिस वी कॉल इट एज एक्चुअल रिजल्ट। सो द रिजल्ट आई गॉट फ्रॉम माय एप्लीकेशन इज द एक्चुअल रिजल्ट, वो असली रिजल्ट है, क्योंकि वो मेरा सिस्टम ने मुझे दिया है। सिस्टम इन द सेंस मेरा एप्लीकेशन, वो मेरा एप्लीकेशन ने मुझे दिया है। बट मेरे को जो चाहिए 63, मेरे को जो मिला 79। अब ये करेक्ट है कि नहीं है, कैसे डिसाइड करते हैं? दोनों को कंपेयर करेंगे। मेरे को जो चाहिए, मेरे को जो मिला है, वी सिंपली कंपेयर इट। 63 डबल इज इक्वल टू 79, which is incorrect. It is incorrect. That means whatever requirement I have from my application,
इट इज नॉट फुलफिल्ड। सो जो एप्लीकेशन डेवलप हुआ था या जो एप्लीकेशन मैं यूज कर रहा हूं वो मेरा रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाया। एंड दिस डिविएशन फ्रॉम द रिक्वायरमेंट, so this is my requirement, this is my result, so this deviation from the requirement we call it as a defect, इसको हम लोग defect बोलते हैं। so defect is nothing but deviation from your requirement, right? so software testing में भी ऐसे ही करते हैं हम लोग। software testing is nothing but testing a software, ये बोला था। so कैसे करते हो टेस्टिंग? ऐसे ही करते हैं। every software will have a requirement, ठीक है? every software, every application in IT will have one requirement or will have some requirements, so these requirements we might be using different names। ये requirements के लिए हम लोग अलग अलग नाम यूज करेंगे। requirement को sometimes we call it as a functionality, ठीक है? ये requirement को हम लोग functionality बोलते हैं हमारा टर्मिनोलॉजी में, मतलब टेस्टिंग टर्मिनोलॉजी में या IT टर्मिनोलॉजी में। functionality also called as a module, ठीक है? functionality also called as a module which is also called as component, ठीक है? which is also called as a component। अगर मेरा मॉड्यूल सबसे बहुत ही छोटा मॉड्यूल है, अगर मेरा मॉड्यूल बहुत ही छोटा है, then we call it as a unit, you can even call it as a unit, ठीक है? we can call it as a unit। ऐसा different terminology होता है, we might be having different terms, we might be using different terms, so every application will be having some requirement। so testing is nothing but making sure whether this requirement is fulfilled by the application or not, whether this requirement is satisfied by the application or not। मेरा जो application है वो application satisfy किया है कि नहीं है मेरा requirement को, ये चेक करना होता है। so software testing मतलब क्या होता है? software testing, it is simply comparing our expected values with actual values। application कौन सा भी टाइप का हो, there are different kinds of applications, ठीक है? you will be seeing banking applications, you will be seeing into telecom domain applications or telecommunication applications, or you might be working with e-commerce applications, कौन सा भी हो। so testing is a common activity, so software testing, it is a common activity or it is a process, you can call it as an activity or you can call it as a process। so software testing, it is a process which we follow on the applications simply to make sure whether the application is working according to the requirement of the customer or client। so मेरा requirement के हिसाब से application काम कर रहा है कि नहीं है, ये चेक करना होता है software testing में। software testing, it is a process, software testing is a process which we follow on the application to make sure or to check whether to check that the application is working according to the requirements given by the customer or not, ठीक है? this is the meaning of software testing। सिंगल लाइन में अगर आपको एक्सप्लेन करना है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज टेस्टिंग ए सॉफ्टवेयर, बट एक्चुअल में अगर आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करनी है व्हाट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इट इज अ प्रोसेस, ठीक है? एक तरीका है जो हम लोग एप्लीकेशन के ऊपर यूज करते हैं
ठीक है, it is an process that we follow on the application simply to make sure whether the application is working according to the given requirements of the customer or not. So there are different definitions or different ways how we explain software testing. ऐसा नहीं है कि यार software testing को explain करने के लिए एक ही option होंगे, तो software testing को explain करने के लिए अलग अलग options हैं, अलग अलग ways हैं. This is one way. ठीक है, this is one way. So if you want to explain software testing in another simple way, अगर आपको और एक simple way में software testing को explain करना है, so if you want to explain software testing in another way or in the easy way, so we can even say that software testing is a process which we use to check, okay, which we use to check whether the application that is developed, that was developed is ready to use or is fit to use. मतलब जो भी सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया है, राइट, जो भी सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया है वो सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए रेडी है कि नहीं है. सो एप्लीकेशन यूजेबल है कि नहीं है, यूजर्स उसके ऊपर काम कर सकते हैं कि नहीं है, ये चेक करने के लिए एक तरीका है. दिस इज अनदर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. अगर आपको और एक वे में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को एक्सप्लेन करना है, देयर आर मल्टीपल वेज. तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग is a process we follow to check whether the application is working as it is supposed to work or not. As it is supposed to work or not. मेरा एप्लीकेशन जिस हिसाब से काम करना चाहिए, जैसे मेरा एप्लीकेशन काम करना चाहिए वैसे मेरा एप्लीकेशन काम कर रहा है कि नहीं है, ये चेक करना होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में. दिस इज अनदर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. नहीं, अगर हमको थोड़ा टेक्निकल वे में एक्सप्लेन करना है, इफ यू वांट टू एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इन टेक्निकल टर्म्स, टेस्टिंग टर्मिनोलॉजी में अगर आपको एक्सप्लेन करना है, सबका डेफिनेशन मतलब सबका एंड रिजल्ट तो सेम रहेगा. एप्लीकेशन करेक्टली काम कर रहा है कि नहीं, प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं, चेक करनी है. अभी चेक कर, ये प्रोसेस समझाने के लिए अलग अलग लोग अलग अलग वेज यूज करेंगे, राइट, अलग अलग लोग अलग अलग वेज यूज करते हैं. अभी ये देखो, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अगर आप थोड़ा टेक्निकल वे में एक्सप्लेन करनी है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ प्रोसेस which we follow on the application, with the intent of finding bugs by equating the expected results with the actual results. By equating the expected results with actual results. If expected and actual results both are same, then we can say that the functionality is working fine. Then we can say that the application is working properly. If it is not working, if the expected and actual results are different, then we say there is some mistake. कहीं तो कुछ गलती हुआ. उस मिस्टेक को हम लोग बग्स बोलते हैं, उस मिस्टेक को हम लोग डिफेक्ट्स बोलते हैं. तो डायरेक्टली यू कैन से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज डन टू फाइंड द बग्स इन द एप्लीकेशन. ऐसे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो. बट इस सेंटेंस में देयर इज वन प्रॉब्लम, बिकॉज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज नॉट एक्चुअली डन टू ओनली फाइंड द बग्स इन द एप्लीकेशन. तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सिर्फ बग्स फाइंड आउट करने के लिए नहीं है. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज डन टू
do different things. Software testing is done to improve the quality of the application. Software testing is done to check the behavior of the application. Software testing is done to check the user friendliness of the application. ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सिर्फ बग्स फाइंड आउट करने के लिए नहीं है, बट टेस्टिंग करते वक्त हमको बग्स मिलता है. The only reason of testing is not to find the bugs. The software testing is done to improve the quality of the application. Software testing is done to create a stable application. ठीक है. So software testing, it is a process. Explain करते वक्त generally ऐसे explain करेंगे हम लोग. Software testing, it is a process which we follow on the application with the intent of finding bugs by equating the expected values with actual values. So if the expected values and actual values are same, we consider that the test is pass. तो प्रोसेस हमने जो फॉलो किया था, whatever process we have followed, हमने जो भी प्रोसेस फॉलो किया है, वही प्रोसेस को हम लोग टेस्टिंग बोलते हैं. टेस्टिंग इज अ प्रोसेस. तो इसी टेस्टिंग को आपके कॉलेजेस में हम लोग एग्जाम्स भी देते हैं ना. ऐसे नहीं कि एप्लीकेशंस को ही टेस्ट करते हैं हम लोग. एट द एंड ऑफ ईच एंड एवरी सेमेस्टर इवन स्टूडेंट्स विल बी गिवन एग्जाम्स. बच्चे के लिए भी एग्जाम्स देना पड़ता है. वहां पे आपको टारगेट्स होते हैं. पास होने के लिए 40 चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग मेहनत करते हैं. फर्स्ट क्लास चाहिए तो 60% चाहिए. सो 60% के हिसाब से आप एग्जाम देते हो, नहीं तो 100% के हिसाब से आप एग्जाम देते हो. सो बेस्ड ऑन द एग्जाम्स यू विल बी गिवन सम मार्क्स. सो तुम्हारा पेपर इवेल्युएट करने के बाद आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेगा. सो ये मार्क्स हमारा टारगेट्स के साथ कंपेयर करते हैं. 40 और उसके ऊपर आता है तो पास होता है बंदा. 40 से कम आया, यू विल बी कंसिडर्ड एज अ फेल्ड कैंडिडेट. द सेम वे इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आल्सो देयर विल बी सम एक्सपेक्टेशंस. उसी एक्सपेक्टेशंस को हम लोग रिक्वायरमेंट्स बोलते हैं. राइट, उसी एक्सपेक्टेशंस को हम लोग रिक्वायरमेंट्स बोलते हैं. तो ये रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं है, ये चेक करना होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. Is it clear to everyone till here? Okay.